بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 49 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سیمی آنٹی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں آئے روز ہمیں تفتیش کے لیے سامنے بٹھا لیا جاتا ہے؟ سعد سلطان کہاں چلا گیا ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بتائیں وہ کدھر ہے؟ سیمی آنٹی کی آواز لرز رہی تھی اور اچھے خاصے خوشگوار موسم میں بھی ان کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مدہوش نظروں سے سارہ کو دیکھا جو چہرے کو ہاتھوں پر ٹکائے خاموش بیٹھی کچھ دیکھے چلی جا رہی تھی۔ سارہ، انہوں نے سارہ کا بازو جھنجھوڑا، کیا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا تم ذرا سا بھی پریشان نہیں ہو رہی؟ پریشان ہونے یا پریشانی دکھانے سے کیا فرق پڑے گا سیمی آنٹی؟ سارہ نے چہرہ ہاتھ کے سٹینڈ سے ٹکاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ابھی تو صورتحال ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا پتہ ہے ہمیں؟ اور یہی تو میں کہہ رہی ہوں، سیمی آنٹی نے جھنجھلا کر کہا۔ تم نے اس روز اس سے کیوں کرید کر نہیں پوچھا کہ وہ تمہیں بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ اور ATM کی تفصیل سنا رہا تھا تو کیوں سنا رہا تھا؟ تم نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس روز وہ اتنے رف حلیے میں کیوں تھا؟ میں نے ہاتھ کی چوٹ کا پوچھا تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ اس کے ہر انداز میں اس روز کچھ غیر معمولی تھا، لیکن تم نے نوٹ کیا، نہ مجھے کچھ پوچھنے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ مجھے میرے کسی ایسے سوال کا جواب دیتا جو ہم سے باہر اس کی جنرل زندگی سے متعلق ہوتا؟ اس نے سوال کیا۔ ہمارے لیے ہمارے سامنے اس کا صرف ایک ہی روپ نمایاں ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، نیکی کے فرشتے کا روپ۔ اس سے آگے وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کون ہے؟ میں اور آپ نہیں جانتے۔ پھر اس سے کیا سوال کرتے آخر ہم؟ تو پھر اتنا سوچو کہ آئندہ کیا ہوگا؟ سیمی آنٹی کے سامنے مستقبل کیسی خوفناک بتنے کی طرح ناچ رہا تھا۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ فلیٹ، یہ سامان۔ انہوں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ زندگی گزارنے کے تمام وسائل۔ ان کے چہرے پر وحشت دوڑنے لگی۔ ساتھ تو کہیں چلا گیا، وہ تو رابطے میں بھی نہیں ہے۔ سوچو ہم کیا کریں گے؟ حیرت ہے سیمی آنٹی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ سارہ نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ساتھ کے یوں چلے جانے پر آپ کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سیمی آنٹی اس طرح وحشت زدہ چہرے کے ساتھ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اپنی گول گول آنکھیں گھماتی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو وہ دن شاید بھول گیا۔ سارہ کے لہجے میں تلخی اتری۔ وہ گفتگو بھول گئی؟ مجھے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد ہے، کیونکہ آپ کی اس گفتگو نے ہی مجھے باغ عدن سے دشت ظلمت میں لا پھینکا تھا۔ یاد کریں ذرا۔ اس کے لہجے کی تلخی بڑھی۔ آپ نے کہا تھا ساتھ تمہاری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جب وہ چلا گیا تو سوچو تم کیا کرو گی؟ سارہ کا لہجہ تلخ سے تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، پھر اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آپ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، وہ مبارک وقت آن پہنچا۔ سعد ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو روکنے کے لیے لمحہ بھر کے لیے سر جھکایا۔ مگر آپ کو کیا فکر؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں کو کام کرنے کی عادت بھی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ جائیے، جا کر قریشی اور ان کی سلائیوں کی شاہکار بنا کر بیچیے، سلائی کڑھائی کر کے گزارا کیجیے۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بجائے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ سارہ اب تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے بتانے کے سے انداز میں جملے کا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ، اس نے اپنے کمزور ہاتھ میز پر پھیلائے جن پر نسیں ابھری ہوئی تھیں اور جن کی ہتھیلیوں کا رنگ زرد تھا، اور میری ٹانگیں، اس نے میز کے نیچے سے اپنی ٹانگیں باہر نکال کر پھیلائیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ساتھ کے یوں چلے جانے پر یہ غم نہیں ستا رہا کہ آگے میرا کیا ہوگا۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ میرا دل یہ سوچ کر کٹا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جو اس کے اپنے اس کو ڈھونڈنے یہاں چلے آئے۔ میرا ذہن یہ سوچ سوچ کر معاوف ہو رہا ہے کہ وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگا۔
इस रोज़ जब वो यहाँ आया था तो कितना टूटा हुआ और दुखी नज़र आ रहा था। इसकी बातें बेरबत थीं और मानी खेज भी। मुझे इनके मानी समझ में नहीं आए थे और इस रोज़ से ना जाने मेरा दिल क्यों इस खदशे में था कि अब शायद ही कभी मैं इसे देख पाऊँ। सिमी आंटी सारा की हालत देखकर अपनी परेशानी भूल गई। मुझे सौ सिवाय इसके गम के और कोई और गम याद नहीं। सिमी आंटी, अब इसकी आवाज़ पस्त होने लगी। वो जो दुनिया के लिए पैसे वाला आदमी है, जिसके पास पैसा है और बहुत है। इसने सिमी को तन से देखा, मगर मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि वो दिल वाला आदमी है। इसके पास दिल है और बहुत बड़ा है। वो जिसकी आमद मेरे लिए ज़िंदगी का पैगाम और जिसकी रुखसत इसकी दोबारा आमद की उम्मीद देती रही। अब इसके यूँ चले जाने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुखसत हुई, सिर्फ सांसें बाकी हैं। सिमी आंटी फटी फटी आंखों से सारा को देख रही थी। बाकी रहा ज़िंदगी गुजारने का मामला और आइंदा आने वाले वक्त का इंतज़ाम। वो सांस लेने के लिए वक्फे के बाद रुकी तो मैंने खाना ना सिर्फ पैसे वाला नहीं, दिल वाला आदमी है। पिछले एक अरसे से वो मुझे खुद अपने आप पर इन्हिसार करने के सबक यूं ही नहीं पढ़ा रहा था। इसने सिमी आंटी की तरफ देखा, जिसने इसके यूं देखने पर शर्मसारी से सर झुका लिया। ये जो मेरे हाथ काम करने लगे हैं और मेरी टांगें चलने लगी हैं, इनको किसने काम करने और चलने का हौसला दिलाया? मैं तस्वीरों में रंग भरने से शुरू होकर सुई धागे के काम तक किसके कहने पर पहुंची? इसी दिल वाले के कहने पर, जिसके पास दिल है और बहुत बड़ा दिल है। यूं ही तो वो इस रोज़ मुझे बैंक अकाउंट्स, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की तफसील लिखकर मुझे नहीं दे गया। इसने सर झटका। लेकिन इन बेहकीकत चीज़ों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मुझसे नज़रें मिलाने को मेरे सामने आ खड़ी हुई है। वो नहीं है सिमी आंटी, वो कहीं नहीं है। इसने अब अपने आंसुओं को रोका नहीं, इन्हें बहने दिया। आप ले लें वो सब तफसीलात आप ले लें, अकाउंट, कार्ड्स, पैसा आप ले लें। ये जाने बगैर कि वो पैसा इसने मुझे किस मद में दिया, ज़कात की मद में या खैरात की मद में। इसे इस वक्त तक इस्तेमाल कर लें सिमी आंटी, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बोली, रोज़गार का गम मेरा रोग नहीं है, इसकी जुदाई का गम बनाने दे मुझे। वो जो कहीं नहीं है, वो जो कहीं गुम हो गया है। सिमी आंटी सारा को रोते हुए देख रही थी। वो अपने वक्ती परेशानी भूल बैठी थी। अब ये सिर्फ इसके ना होने का गम मना रही है। ये इस बात से बेखबर है कि साथ के लवाहिकीन जो इसे ढूंढने हम तक पहुँचे हैं, वो हमारे इसके साथ ताल्लुक़ की नोयत के बारे में कितने मशकूक हो रहे हैं। जहाँ दीदा सिमी आंटी की सोच सारा से बिल्कुल मुख्तलिफ सेंध में सफ़र कर रही थी। इन्हें रह रह कर साथ के मुताबिक सवाल करता वो गोल मटोल लड़का याद आ रहा था, और जो ये साबित करने पर तुला हुआ था कि वो दोनों यकीनन जानती थी कि साथ क्यों और कहाँ गया था। क्योंकि आखिरी बार इसने साथ को इन ही के फ्लैट के नीचे पकड़ा था, और अगर वो हमारे पीछे पड़ गए तो ये फ्लैट, ये अकाउंट्स और ये प्लास्टिक मनी सब धरे के धरे रह जाएंगे। फिर खुला आसमान होगा और हम होंगे। ये तो 100% दुरुस्त बात है कि मैं अपने जीने का सामान कर सकती हूँ, मगर तुम्हारा क्या होगा सारा? सिमी के दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या मुझ में इतनी हिम्मत है किसी के सहारे के बगैर तुम्हारा बोझ उठा सकूँ? वो सोच रही थी। इसने कमरे में रोशनी का कोई ज़रिया ऑन नहीं किया था। वो दोपहर से सोफे पर टांगे समेटे अपने सामने मेज़ पर रखी इन चीज़ों को देखे चली जा रही थी जो इसे कुरियर के ज़रिए मौसूल हुई थी। दोपहर गुजरी, सहपहर का सूरज का रुख बदल गया, फिर शाम के साए उतरने लगे और कमरे में रोशनी कम होने लगी। रोशनी कम होते होते तारीकी में बदलने लगी, लेकिन इसकी साकित नज़रें मेज़ पर रखी इन चीज़ों से नहीं हटी। फिर कमरे के दरवाजे के ऊपर लगी इतलाई घंटी बजने लगी। घंटी की इस आवाज़ ने इसके जहन को चौंकाया, लेकिन यूं ही बैठी रही। घंटी मुसलसल बज रही थी और इसकी आवाज़ इसके दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगी थी। मजबूरन इसे अपनी नज़रें इस जगह से हटानी पड़ी और अपनी जगह से उठना पड़ा। ओफ़ो, क्या मुसीबत है! वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई और तेज़ कदमों से चलती बाहर निकल गई। कौन है? बुलंद और गुस्सैली आवाज़ साकित फ़ज़ा में फैली। दूध ले लें मैडम, और दूध का बिल भी दे दें। आज ड्यू डेट है बिल की। बाहर से आवाज़ आई। अगर तुम आज बिल ना लेते तो क्या क़यामत आ जाती? इसने गेट खोलकर इसी दुरुस्ती से कहा। मेरी शॉप पर पैसे जमा करवाने होते हैं मैडम, वो इंतज़ार नहीं करते। सामने खड़े लड़के ने जवाब दिया। वो इन मैडम साहिबा के गुस्सा दृष्टि से वाकिफ़ था, लिहाजा इस रवैये से बिल्कुल भी नहीं घबराया।
इस वक्त मेरे पास घर में कैश बिल्कुल नहीं है, कल ले लेना। इसने दूध के पैकेट पकड़ते हुए कहा, जो इसकी अमूमी शख्सियत का खासा था। मैं माजरत ख्वाह हूँ मैडम, पैसे तो मुझे लेकर ही जाने हैं। लड़का तहम्मुल से बोला। इसके लिए ऐसे रोज़मर्रा का मामूल था। वो कुछ देर गुस्से में फुंकारती शोलाबार नज़रों से लड़के को घूरती रही और फिर ज़ोर से फर्श पर पाँव मारते हुए मुड़ गई। 7 मिनट के बाद गेट पर वापस आई। आकर इसने पैसे सचमुच लड़के के मुंह पर मारते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू मैडम, हैव अ नाइस इवनिंग। लड़के ने अपनी पी कैप पर हाथ रखते हुए पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा और वापस मुड़कर अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करने में मसरूफ़ हो गया। ठाक की आवाज़ पर इसने देखा, ये मैडम की गेट बंद करने का अंदाज़ था। वो एक दफ़ा फिर मुस्कुराया और बाइक की सीट पर बैठ कर इसे तरफ मुड़ा, अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। उफ़ो, दुनिया इंसान को तन्हा रहने और तन्हा ही ज़िंदगी क्यों गुजारने नहीं देती। इसने बुलंद आवाज़ में खुद कलामी करते हुए आसमान की तरफ देखा, जिस पर नन्हे सितारे जा बजा बिखरे पड़े थे। इसीलिए तो मैं अपनी ज़ात के दरवाजे बंद किए, सबसे छुपा कर बैठी थी कि ना किसी को मेरा अता पता मालूम हो, ना कोई आए और दस्तक दे। इसके चेहरे के नक़ूश गुस्से के मारे बिगड़ने लगे थे। बुरा हो इस दोस्ती का जिसने लोगों को मेरे रास्ते दिखा दिए। इसका दिमाग उलटने लगा। हो गया ना सब फिर से धर्म भरम। मेज़ पर रखी चीज़ों पर नज़र डालते हुए इसने दांत पीसे। लग गए सुराग, ओपन हो गए सब कोड। चीटर जैसे ही अपनी पहली इनामी मोमे में छुपाई थी कि जो बूझ लेगा इसे ना मिलेगा। इसे शोलाबार नज़रों से इन चीज़ों को घूरा। नहीं चाहिए मुझे कोई क्लू, नहीं चाहिए मुझे की वर्ड्स, नहीं चाहिए मुझे गुमशुदा पते और इन पतों पर मौजूद हकीकतों का सामना। आगे बढ़कर मेज़ पर रखी चीज़ों को हाथ मार कर इधर उधर गिराते हुए वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। इसके हाथ मारने से कुछ चीज़ें करीब ही और कुछ दूर जा गिरी थी। गिरने वाली चीज़ों में देसी बादामों का एक पैकेट भी था, जो फर्श पर गिरने की चोट खाते ही फट गया था और इसमें मौजूद बादाम इधर उधर बिखर गए थे। इस पैकेट पर चस्पा पर्ची पर स्याह रोशनाई में एक दिलचस्प इबारत दर्ज थी, आपकी बेलौस मेज़बानी का औज़ाना देसी बादाम। यकीन जानिए, बादाम तो देसी हैं, कोहता कामत और नाकाबिले इतना, लेकिन असली हैं, इसलिए कि अपने ही खालिस अपने। वो इस इबारत को पढ़ चुकी थी और शायद इसका मफहूम भी समझ चुकी थी, लेकिन वो इससे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। इसलिए अपने सफ़ेद और सियाह इम्तजाज वाले घुंघरियाले बालों वाला सर दोनों हाथों में पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई थी। मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई भाई इफ्तिखार, और तुम्हारी कहानी तुमसे सुनी। अब बताओ किसका बोझ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा ख्वार हुआ। इसगोल ते कुछ ना बोल, खारी ने तासुब से सर हिलाया। जिसको फरोलो वही दुखी, जिसनु सुन लो सच्चा। भाई रिजवानुल हक, मैंने कहा था, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। हर कोई किसी दूसरे की तलाश में लगता है। मेरी और तुम्हारी कहानियों के सब किरदार भटकते फिरते और ख्वार होते फिर रहे हैं। रिजवान ने सर उठाकर खुद पर झुकी दरख्त की शाखों के छितरे पत्तों को देखते हुए कहा। दिन भर के हबस के बाद आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। हल्की हवा चलने लगी थी, जिसके साथ दरख्त के पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। सच आख्या भाई रिजवानुल हक, किसी का सिरा किससे जा मिलता है कौन जाने। खारी ने ठंडी आह भरते हुए कहा। वो अपने ताई अपनी ज़ात के दुख बयान करने बैठा था, मगर रिजवान की दास्तान सुनकर इसे लग रहा था वो इससे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। कम अज़ कम इसके सर पर और किसी का ना सही चौधरी सरदार का साया तो था ही। तुम एक काम करो भाई इफ्तिखार, रिजवान ने अपनी छोटी छोटी आंखों से खारी की तरफ देखते हुए कहा। पंगे ही रहते हैं ये जापानी और चीनी गुड्डे। खारी को इसकी छोटी आंखें और छोटी सी चीनी नाक देखकर ख्याल आया, शक्लों से बहुत मासूम लगते हैं, चाहे अंदर से कितने मक्कार ही क्यों ना हो। इसे अपने ही ख्याल पर हंसी आने लगी। हाँ जी, क्या काम। वो इससे बेख्तियार हंसी को कंट्रोल करते हुए रिजवान से पूछने लगा। लगता है पता नहीं कितने सालों बाद हंसा हूँ। इसे ख्याल आ रहा था, फ़ौरन से पहले अपनी बहन जी और साद साहब की मुलाकात का इंतज़ाम करो, ये बहुत ज़रूरी है भाई। कोई बिछड़ा हुआ तो किसी से मिले ना हमारी दास्तानों में, रिजवान ने संजीदगी से कहा। कितने छोटे छोटे बाल हैं इसके। खारी बेध्यानी से रिजवान की बात सुनते हुए सोच रहा था, मशीन ही फिरवा रखी है बेचारे ने,
लगता है घास की हुई है निक्की निक्की। मेरी बात गौर से सुन रहे हो भाई इफ्तिखार? रिजवान को इसके गायब दिमागी का अंदाज़ा हो रहा था। आहो, खारी मुँह चौंकते हुए बोला, आपको बताया तो है कि मैं नूर बाजी इस वेले वापस चली गई थी साद बाऊ साहब से बात करने। तो फिर अब तक इनकी कोई इतला तो नहीं आई ना? रिजवान ने कहा। इनसे किसी ने पूछा कि साद साहब की क्या खबर है? बहन जी के बारे में सुनकर इनका क्या रद्द अमल था? नहीं जी। खारी ने कान खुजाते हुए सर झुकाया। आप दोनों बताया तो है मैंने सादिया वाली बात, मुझे तो अपनी पड़ी थी जी। मैं न ना बड़ा स्या फंसा भाई रिजवान। सपने देखने की उम्र थी पर कभी देखे नहीं थे। चौधरी साहब उंगल से पकड़कर सपनों की दुनिया में ले गए। अभी पूरी तरह देखे भी नहीं थे कि धक्के नाल जगा दिया किसी ने। वो बेचारगी से बोला, ज़रूर नहीं कि भयानक ख्वाबों की ताबीर भी भयानक ही हो भाई इफ्तिखार। कभी कभी ख्वाबों की ताबीर इनसे उलट भी होती है। रिजवान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम अपनी बेगम की वापसी का इंतज़ार करो। वापस ना आए तो हिम्मत करो और जाकर इनसे पूछो कि इसका क्या इरादा है। गोमगों में पड़े रहने से बेहतर है इंसान हकीकत से नजरें चार कर ले। कोई आसान काम बताओ रिजवान भाई, हकीकत नाल नजरें चार कर लो। वाह जी वाह, खाली ने इसकी बात दोहराकर कहा। पहाड़ तले चढ़कर दूसरे पासे उतरना आसान काम है, हकीकत नाल नजरें मिलाना बड़ा औखा काम है मेरे भाई। तो क्या फिर यूं ही इधर उधर छुपते फिरोगे, खुद से भी और लोगों से भी? रिजवान ने आपके ज़रा सख्त लहजे में कहा। क्या फ़ायदा होगा इस छुपन छुपाई का? एक ना एक रोज़ तो हकीकत तुम्हारे सामने किसी कोने से निकल कर आ ही जाएगी। खारी खामोशी से सर झुकाए ज़मीन पर उगे सब्जे को हाथ फेरता रहा। इतने बुज़दिल हो तो किसी बिरते पर बिला शहरी हो रहे थे कि वो डॉक्टर बनने की तैयारी करे, तुम इसके चौकीदार बन जाओगे। खारी ने कुछ गीली कुछ सूखी ज़मीन से चंद बूटियाँ नोच कर उखाड़ी। खजाने का चौकीदार बनना आसान काम है क्या? रिजवान ने इसका बाजू पकड़ हिलाकर कहा। 10 दफ़ा दिल बेईमान होता है बंदे का, देखने वाला कोई नहीं, चुराना नहीं तो खजाने को हाथ लगा कर ही देख लिया जाए कि ये होता कैसा है। बस हाथ लगाने से पहले ही खजाना खजाना होता है भाई रिजवान। हाथ लगा तो खजाने की ढेरी भी मिट्टी हो जाती है। पैरों के बल उकड़ों बैठे खाली ने खुद रोबोटियों का एक और गुच्छा उखाड़ते हुए कहा। खैर ऐसा भी नहीं है, रिजवान ने कहा। सोने की कुछ ढेर हाथ लगने से कुंदन भी बन जाते हैं। बढ़िया ऊंचियाँ बातें ना करो भाई साहब, मेरी समझ बीच किताबों की बातें कहाँ आती हैं। समझने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है। बस भाभी की वापसी का इंतज़ार करो, रिजवान ने कहा। रास्ता किधर देख रहे हो आप? खाली ने नज़र के सामने फैले एक रास्ते की तरफ इशारा किया जो खेतों के दरमियान पगडंडियों की शक्ल में बल खाता सीधा होता मुड़ता फैला था। एहो, ये रास्ता आगे जाकर मस्जिद के पास से गुजर कर खम्बे मुड़ता है और फिर मौलवी जी के घर तक चला जाता है। इसने रास्ते की तरफ देखते हुए कहा। कोई बड़ा लंबा रास्ता नहीं है जी, पर आजकल लगता है रास्ता है चलने लगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। सा साह चढ़ जाएगा, रास्ता ना मुक्के। ये रास्ता नहीं है भाई इफ्तिखार, इंतज़ार की कैफियत है जो तुम्हें थोड़ा सा फासला मीलों पर फैला नज़र आ रहा है। रिजवान ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। मैं इस कैफियत से वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं इंतज़ार ही नहीं कर रहा, मुझसे का भी मुंतज़िर हूँ। और मेरे सामने तो ना कोई रास्ता है ना मंजिल, बस शराब ही शराब है। वो शायद खुद से मुखातिब था, इसीलिए खोए अंदाज में बोल रहा था। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास रास्ता भी है मंजिल भी, बस मुक़द्दर को नज़रों की ओर से निकल कर सामने आना है। और मुझे यकीन है तुम जैसे नेक नियत लोगों के मुक़द्दर एक अरसे के इंतज़ार के बाद जब बावरी कराते हैं तो अगले पिछले कई रिकॉर्ड टूट जाते हैं। वो मुस्कुराया। टप आसमान पर जमा होते गहरे बादलों से टपकी पहली बूंद खारी के चेहरे पर गिरी। ओए अंदर चलो, बादल बरसने लगा है। पहली बूंद के एहसास ने खारी के अंदर एक अजीब सी सरशारी भर दी। वो छोटे बच्चों की तरह चीख कर बोला और रिजवान का हाथ पकड़कर भागता हुआ फार्म हाउस की तरफ आ गया। जे तेरे मेरा मुकद्दर अच्छा हुआ तो फिर भाई रिजवान उल्लाह
हम मिलकर तुम्हारा मुआवजा भी ढूंढ निकालेंगे। वैसे इनका नाम बड़ा अजीब सा है भाई। फार्म हाउस तक पहुँचते पहुँचते वो दोनों अच्छे खासे भीग चुके थे। खारी ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए हंसकर रिजवान को यकीन दिलाया। तुम साहब और बहन जी की फिक्र करो पहले, रिजवान ने अपने सर पर हाथ चलाते हुए कहा। चलो ठीक है। खारी ने सर हिलाया और सर झुकाकर मुस्कुराया। लो दसो भला, प्रिया रानी भी किसी लड़की का नाम होता है? वो दिल में महसूस हो रहा था। जापानी गुड्डे भी प्यार के नाम जापानी ज़ुबान में ही निकालते हैं। नाम भावे परवीन अख्तर हो, इसका प्यार नाल बुलाओ प्रिया रानी। इसे बिला वजह हंसी आई चली जा रही थी। चलो शुक्र है तुम मुस्कुराए तो, रिजवान ने इसे मुस्कुराते हुए देख कर कहा। मेरा ख्याल है मौसम भी मूड बदल डालता है इंसान का। मेरे जय बंदे का तो दिल का बोझ निकल जाए तो मुस्कुराने लगता है। खारी मुस्कुराया। आप मेरे बुलाने पर आ गए, मेरे दिल की सुन ली, मैं भला चंगा हो गया। बड़े खुशकिस्मत हो भाई, इतनी जल्दी भले चंगे हो जाते हो। चलो आप कहते हो तो होंगे खुशकिस्मत। खारी ने सर हिलाया। आओ आप नु स्टंट दिखाऊं? स्टंट? रिजवान ने सवालिया नज़रों से देखा। स्टंट नहीं समझे, खारी जी ने बेयकीनी से कहा और फिर हाथों में फर्जी बांगे पकड़कर बाजू हिलाते हुए मुंह से आवाज़ निकाली। टकर टका टक घोड़े वाला फार्म। ओह अच्छा। फार्म ने समझ में आने पर कहा। तुम्हारे चौधरी साहब को चाहिए 2-3 शेर भालू चीते भी रख लें और अपना सर्कस खोल लें। सर्कस सीते लगा है 4 तरफ। खारी ने हंस कर कहा। कोई देखे तो तालियां बजाए ना। कभी कभी तुम सादगी में भी बड़ी गहरी बात कर जाते हो भाई इफ्तिखार, रिजवान ने कहा और खारी के पीछे चल दिया।